آپ نے بتایا کہ جو جیپنیز نے اس ہاسپٹل کو ڈیزائن کیا، جو سسٹم انہوں نے استعمال کیے جیپنیز نے، وہ اس وقت کے دنیا کا بہترین سسٹم تھا. اس اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل دنیا میں کہیں نہیں نظر آیا. اب جو اسپلٹ اے سیز لگا دیے گئے ہیں تو اس سے کیا نقصان؟ بجلی کی کاسٹ نہیں وہ برداشت کر سکتے، تو انہوں نے اس پورے سسٹم کو بند کر کے صرف کچھ جگہوں کو ایئر کنڈیشن کیا ہے. اے سیز لگائے ہیں، اس میں وہ ہیپا فلٹرز کا خیال رکھا گیا ہے نہیں رکھا گیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. جو اس کے ایگزٹس تھے وہ بند تھے. یہ 1000 آؤٹ پیشنٹ پر ڈے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن جب اس میں اباؤٹ 200 آؤٹ پیشنٹ پر ڈے آئے تو یہ ان سے کنٹرول نہیں ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین، 26 اگست کو پیمز ہاسپٹل کے اندر جو چلڈرن ہاسپٹل ہے، بڑا اندوہناک سانحہ وہاں پر پیش آیا. 14 نومولود بچوں کی جانیں گئیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہارون رشید صاحب، ایک آرکیٹیکٹ ہیں، اور 1983 سے لے کر 1986 تک جو جیپنیز فرم تھی جس نے یہ چلڈرن ہاسپٹل تعمیر کیا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے اس کام کو سپروائز کیا. اور ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو بلڈنگ تھی اپنے زمانے کی ایک جول تھا. اس وقت اس درجے کی جو تعمیرات تھیں وہ امریکہ میں بھی نہیں تھیں. ہاسپٹلز کی اگر بات کی جائے، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو حادثہ ہوا اور اس کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایگزٹس بند تھے یا جو جس طریقے سے مینٹیننس نہیں کی گئی، تو ان سے ہم اس حوالے سے کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. سر، یہ جب آپ نے پیمز چلڈرن ہاسپٹل حادثے کی خبر سنی تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا؟ یہ مجھے تو اتنا دکھ ہوا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اتنی اچھی بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور اس میں اتنے چھوٹے بچوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. یہ ڈیفینیٹلی کوئی مسٹیک ہوئی ہے، اور یہ اے سی کے سسٹم میں ہی لگتا ہے کہ جو مسٹیک ہوئی ہے. جو انہوں نے جوگاڑ لگائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے سینٹرل اے سی کو اگر بند کر دیا ہے اور وہ چھوٹے اسپلٹ یونٹ بنائے ہیں لگائے ہیں، تو یہ اس قسم کی حرکتیں ہاسپٹل میں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کم از کم ہاسپٹل کے لیے ایسی چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے کہ جس کو ہم سیکریفائز کر سکیں، لیکن ادھر ہمیں تمام فیسلٹیز جو انسان کی جان کو بچاتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو خراب سے خراب تر کریں. یہ مجھے بہت دکھ ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی. بہت اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سر، آپ اس چلڈرن ہاسپٹل کی تعمیر کو آپ نے سپروائز کیا فرام 1983 ٹو 1986. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے تاثرات بتائیے کہ جہاں پر آپ نے اس منصوبے کو آپ نے تعمیراتی منصوبے کا پارٹ رہے. آپ کو جب یہ خبر ملی، یہ اتنی اندوہناک خبر، اتنی افسوسناک خبر جب آپ کو ملی، تو آپ کے محسوسات کیا تھے؟ یہ چلڈرن ہاسپٹل میں رائٹ فرام دی ایکسکویشن ٹل فرام دی ہینڈنگ اوور اپ ٹو ہینڈنگ اوور میں اس میں انوالو رہا. ایکسکویشن کو بھی دیکھا. مجھے اس کا یہ کہ پتہ ہے کہ کس طرح رکھی گئی، کیسے رکھی گئی، کہاں کیا چیز استعمال کی گئی، کیا چیز کس طرح استعمال کی گئی، اس کو میں نے اسٹڈی کیا، اس کو میں نے دیکھا. اس ہاسپٹل میں جو سسٹم انہوں نے استعمال کیے جیپنیز نے، وہ اس وقت کے دنیا کا بہترین سسٹم تھا. اس وقت اس سے تھوڑے عرصے بعد جب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جب ڈیزائن ہو رہا تھا، اس سلسلے میں امریکہ گیا اور باقی دنیا میں دوسرے ہاسپٹلس کو بھی اسٹڈی کیا. تو مجھے اس اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل دنیا میں کہیں نہیں نظر آیا جس اسٹینڈرڈ کا یہ ہاسپٹل اس وقت جیپنیز نے بنایا تھا. یہ ایک بہت جول تھا. اس میں ہر چیز کا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا گیا تھا.
किस तरह इंटर डिपार्टमेंटल लिंक को देखा गया कि क्या क्या मूवमेंट होती हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, क्या लिंक है, किसको किस जगह पर प्लेस करना है, किस जगह पर प्लेस नहीं करना है। उसमें जिस तरह ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर को बिल्कुल एक्सक्लूसिव किया गया, उसकी मुख्तलिफ एंट्रेंसेस बनाई गई। एक तरफ उसमें किस तरह उसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, किस तरह डॉक्टर कहाँ से आएंगे, मरीज पेशेंट कहाँ से आएगा, फिर पेशेंट का किस तरह रिकवर करेगा, फिर पेशेंट किस तरह इंटेंसिव केयर यूनिट में जाएगा। इस सब चीज़ को बहुत माइन्यूटली डिटेल में सोचा गया, उसको डिज़ाइन किया गया और इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि बैक्टीरियाज फैले नहीं। अच्छा सर, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। आपने बताया कि जो जापानीज़ ने इस हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया तो उन्होंने इसमें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम रखा और उसमें उन्होंने बैक्टीरिया कंट्रोल के, बैक्टीरिया ट्रैवल ना कर सकें जी। अब उसमें स्प्लिट यूनिट्स लगा दिए गए हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो क्या चीज़ थी और अब ये जो स्प्लिट यूनिट्स हैं इनके ज़रिए क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, वो जो सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम रखा गया था उसमें उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम भी बनाया कि हर पोर्शन को एक जगह बैठ के आप कंट्रोल कर सकते थे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस किस्म की, किस क्वालिटी की एयर आ रही है, किस क्वालिटी की एयर नहीं आ रही है। इस सब चीज़ को कंसीडर किया गया। उसमें ये था कि बैक्टीरियाज को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने हैपा फिल्टर्स लगाए थे और कुछ एरियाज़ में वो जो एयर सर्कुलेशन थी वो 100% फ्रेश एयर लेते थे ताकि बैक्टीरियाज दोबारा उसमें वो आके पेशेंट्स को बीमार ना करने, या जो ज़ख्मी हैं या जिनके ऑपरेशन हुए हैं तो उनके वोंड्स को वो ख़राब ना कर दें। इस सब चीज़ों का ख्याल रखा गया ताकि रिकवरी बहुत इजी हो, इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। अब जो स्प्लिट एसीज लगा दिए गए हैं तो इससे क्या नुकसान? इससे ये नुकसान है कि वो एक तो उन्होंने जुगाड़, जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जुगाड़ कर लिया है, उसको लगा दिया है। इसमें ये किया गया कि वो इतना बिजली की कॉस्ट नहीं वो बर्दाश्त कर सकते, तो उन्होंने उस पूरे सिस्टम को बंद करके सिर्फ कुछ जगहों को एयर कंडीशन किया है। उसमें लोकली उन्होंने जो एसीज लगाए हैं उसमें वो हैपा फिल्टर्स का ख्याल रखा गया है, नहीं रखा गया है, इसका कोई पता नहीं है। फिर उसमें देखना है कि उसमें कितने परसेंट वो फ्रेश एयर लेते हैं, कितने परसेंट वो रिसर्कुलेट करते हैं एयर को। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं हॉस्पिटल की डिज़ाइनिंग में, उसकी प्लानिंग में, उसकी एग्जीक्यूशन में। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा सर, ये अभी जो ये बड़ा अंदोहनाक सानहा पेश आया बच्चों की डेथ्स के हवाले से, तो एक चीज़ के हवाले से बड़ी बात की गई कि जो इसके एग्ज़िट्स थे वो बंद थे, तो हंगामी रस्ते आप चूँकि इसकी तामीर में इन्वॉल्व रहे हैं, आप बताइए कि उस वक्त हंगामी रस्तों के हवाले से क्या डिज़ाइन में किया गया था? देखिए, मैं बेसिकली चिल्ड्रन हॉस्पिटल में था जी। तो ये उससे बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग है। ये भी जैपनीज़ ने ही बनाई थी, जायका की एड की मदद से बनाई थी। तो जो एग्ज़िट होती है जो जैपनीज़ प्रोवाइड करते हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्टली उस पर अमल करते हैं। दुनिया का बेहतरीन सिस्टम उन्होंने अप्लाई किया होता है बिल्डिंग्स में। उसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है कि उसमें कोई चीज़ हिंडर ना करे और इजीली ओपन हो जाए। उसमें लॉक सिस्टम मैंने कुछ जगह यहाँ पे देखा है, उन्होंने देसी लॉक लगा दिए हैं जहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वहाँ तो मैं देखा नहीं, लेकिन वो देसी लॉक लगा दिए, कुंडियाँ लगा दी, जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कल्चर है बेसिकली। एक हमारा कल्चर भी इस किस्म का है कि हम एक अच्छी चीज़ को सही तरह इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो डिज़ाइन किया गया था ये 1000 आउट पेशेंट पर डे के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जब इसमें
अबाउट 200 आउट पेशेंट पर डे आए, तो ये उनसे कंट्रोल नहीं हुए। ये यहाँ का हमारा सोशल सेटअप इस तरह का है कि हमारे एक पेशेंट के साथ 10 उसके अटेंडेंट्स आ जाते हैं, तो जो उसको हिंडर करते हैं, उस सिस्टम को हिंडर करते हैं कि उसको हम कैसे हैंडल किया जाए। तो उस चीज़ को हमारा एक माशरा कुछ ऐसा है कि हमें गैर ज़रूरी तौर पे वहाँ ताले लगाने पड़ते हैं, जो कि हमेशा खुले रहने चाहिए, जहाँ जो गैर ज़रूरी लोग ना दाखिल हों। लेकिन हम वो लोग वहाँ उसमें दाखिल हो जाते हैं, तो वहाँ फिर कुंडियाँ ताले लगाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सिस्टम में ख़राब है। जी जी। अच्छा सर, आपने बताया कि ये अपने दौर का एक जूअल था, बिल्कुल। और एक बड़ा ही इसका जो डिज़ाइन था, अमेरिकन हॉस्पिटल्स भी उस दर्जे के नहीं थे। बिल्कुल। फिर ये ख़राब कैसे होना शुरू हुआ? देखें, ये ख़राब तो हमारे क्योंकि सर्विसेज हमने उसको मेंटेन नहीं कर सके, तो उसकी वजह से है कि ये ख़राब हुआ है। लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल अभी भी अगर आप कंपेयर करें बाकी हॉस्पिटल से, कि ये इसकी जो बिल्डिंग है बाकी जो मेन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ ही बना था। लेकिन आप जब दूसरी बिल्डिंग्स को और चिल्ड्रन हॉस्पिटल को कंपेयर करेंगे, तो अब भी आप उसमें वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। ये आपको वो पुरानी बिल्डिंग महसूस नहीं होगी। इसमें उन्होंने जगह जगह कोर्ट यार्ड दिए, हमारी क्लाइमेट को अंडरस्टैंड किया, और हमारी क्लाइमेट को इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने यूज़ किया कि एक्सटीरियर विंडोज़ को उन्होंने तमाम को कवर कर दिया कि डायरेक्ट धूप ना आए और अंदर मौसम कंफर्टेबल रहे। तो वो जो चीज़ें हैं वो आर्किटेक्चरली तो बहुत खूबसूरत हैं, अभी भी बेहतर हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़रा इन्होंने बेहतर नहीं किया है। नाज़रीन, हारून रशीद साहब चूँकि इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तामीर के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनके पास अब तक जो उस वक्त हस्पताल तामीर किया गया था उसकी तस्वीर ये उनके जो ऑफ़िस है उसकी दीवार पे मौजूद हैं। तो यहाँ वो मुझे कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे इस हॉस्पिटल के जो पार्ट्स बनाए गए थे। सर, कुछ बताइए, ये जो तस्वीरें हैं, ख़ास तौर पे ये जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की तस्वीर है, तो ये इसकी क्या डिटेल्स हैं? ये इनका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो इनके बेसमेंट में है, और ये ही इसका सेंट्रल एसी का कंट्रोल पैनल है जो कि पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करता है, और यहीं से सब चीज़ें कंट्रोल होती है कि कितनी है, क्या टेम्परेचर किस जगह का क्या रखना है, किस किस्म की एयर कहाँ पे रखनी है, ऑपरेशन थिएटर में किस किस्म का सर्कुलेशन देनी है, 100% एयर जो है वो फ्रेश एयर देनी है, किस जगह हमने रिसर्कुलेट करना है एयर को, किस जगह नहीं करना रिसर्कुलेट, ये सब चीज़ें वो इस पैनल से कंट्रोल होती हैं। और ये उनका ऑपरेशन थिएटर है कि यहाँ पर उन्होंने वो हैपा फिल्टर्स लगाए हुए हैं कि जो 100% बैक्टीरियाज को कंट्रोल करते हैं, ताकि यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें कोई बैक्टीरिया ना जाए और वो इन्फेक्शन ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ये करते हैं। और इसमें उन्होंने बेसिकली इस किस्म का ख्याल रखा है ऑपरेशन थिएटर का, रिकवरी का, और ये जिस तरह ये उनका आईसीयू यूनिट है कि किस तरह हमने उसको पेशेंट को कहाँ से लाना है, किस तरह उसको ऑपरेट करना है, किस जगह उसको रिकवरी देनी है, और किस जगह उसको आईसीयू में ट्रांसफ़र करना है, जहाँ पे पब्लिक एरिया बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है और वहाँ पर 100% फ्रेश एयर रिसर्कुलेट करती है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म इस्तेमाल किए गए हैं ताकि पेशेंट को कोई रिकवरी में बहुत इजी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा कि आप ये तो पिम्स का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो चीज़, इसके अलावा आप कौन से ऐसे मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी तामीर आपने अपनी सुपरविज़न में कराई? देखिए, इसमें कुछ मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के इनिशियल डिज़ाइनिंग में भी शामिल रहा, उस इनिशियल कंस्ट्रक्शन में भी शामिल रहा। उसमें डॉक्टर ज़हीर हैं, उनके साथ मिलके हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंटरनेशनल एक फर्म बनाई थी जिसका काम था कि हॉस्पिटल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन,
اس میں کام کیا. اس کے علاوہ میں نے سعودی جرمن ہاسپٹل کے ساتھ کام کیا ہے, ان کے اسٹینڈرڈ کو بھی دیکھا ہے, لیکن وہ جرمنس کا بھی وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا کہ جو اسٹینڈرڈ اس ہاسپٹل کا تھا, وہ بھی اس کو میچ نہیں کر سکتے. یہ اتنی ہائی کوالٹی کا ہاسپٹل ڈیزائن کیا گیا تھا اس وقت کے زمانے میں. اور یہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, اس پروجیکٹ پر 3 پرائڈ آف پرفارمنس دیے گئے, ایک 2 جیپنیز کو اور ایک پاکستانی کو. جیپنیز میں ایک کنسلٹنٹ کو دیا گیا, ایک کانٹریکٹر تھا جس میں میں توبیشیما میں کام کرتا تھا, ہمارے چیف کو دیا گیا, اور ایک انہوں نے پاکستانی کو دینا تھا. اس میں میرا نام بھی نومینیٹ کیا گیا, لیکن میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا عمر میں, تو میری جگہ پھر ایک نرسنگ سپرنٹینڈنٹ تھی, ان کو اس کی چلڈرن ہاسپٹل کی کنسٹرکشن پر پرائڈ آف پرفارمنس. نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کو کنسٹرکشن پہ پرفارمنس. جی ہاں, یہ پاکستان ہے, یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جی ہاں, یہ تو بڑی آپ نے دلچسپ بات بتائی سر. جی. ناظرین, آپ نے ہارون رشید صاحب کی گفتگو سنی, جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک بہت ہی شاندار قسم کا ہاسپٹل تھا, لیکن جو اس کی مینٹیننس درکار تھی اور پھر جو لوکل جگاڑ کیے گئے, جس طرح سے دروازوں کو تالے کنڈیاں لگا دی گئیں اور ایگزٹس بند کیے گئے, تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہماری ایک جو ہم جس طرح سے ہم چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس حادثے کا باعث بنی ہے. وہ وجوہات بھی اس حادثے کے اندر شامل ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.